Hello students, in this session we are going to learn standard 7 maths chapter number 12 algebraic expressions. Now first is the introduction. We have already come across simple algebraic expressions like x plus 3, y minus 5, 4x plus 5, 10y minus 5 and so on in class 6th. We have seen how these expressions are useful in formulating puzzles and problems. We have also seen examples of several expressions in a chapter on simple equation. Expressions are central concept in algebra. In chapter is devoted to algebraic expressions. When you have studied this chapter, you will know how algebraic expressions are formed, how they can be combined and how we can find their values and how they can be used. तो इस चैप्टर में हम कैसे algebraic expressions से हम इसकी values find करेंगे, कैसे इसको combine करना है and इसका expressions का form हो वो कैसे हमें करना है, so वो हम सीखेंगे. So the first topic is how are expressions formed. Expressions जो है वो कैसे formed होते हैं. So see, we use the letters x, y, l, m, etc. to denote the variables. So variables को हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे ऐसे डिनोट करेंगे हम x, y, l, m, a, b, c, d कुछ भी, इससे हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल. इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड. वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो फिक्स होती है नहीं. ऑन द अदर हैंड द कॉन्स्टेंट हैज़ अ फिक्स वैल्यू. कॉन्स्टेंट मीन्स द नंबर्स. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर 4, 100, -17, etc. We combine variables and constant to make a algebraic expressions. हम variables and constant को combine करके algebraic expressions बनाएंगे. For this we use the operation of addition, subtraction, multiplication and division. और इसके लिए हमें ये चार की ज़रूरत पड़ेगी, addition, subtraction, multiplication and division. We have already come across expressions like 4x plus 5, 10y minus 20. So first expression में अगर हम देखें 4x plus 5 is obtained the form of variable x. Variable क्या है इसमें, x. First by multiplying x by constant 4. पहले 4 and x का multiply होगा, then adding constant 5 to the product and then 5 को हम उस product में add करेंगे. Similarly second में भी वैसे ही करेंगे. 10y minus 20 is obtained by first multiplying y by 10 and then subtracting 20 from the product. The above expressions were obtained by combining variables with constant. We can also obtain expression by combining variables with themselves or with their variables. Now यहाँ पे आप अगर examples देखें, x square है, 2y square, 3x square minus 5, ये पूरा टर्म है. Then xy, 4xy plus 7. First, the expression x square obtained by multiplying the variable x by itself. x square यानी कि x को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स. सो यहाँ पे हो जाएगा इसका x square. Just as written 4 into 4 written as a 4 square, we write x into x as x square. It is commonly read as a x square. The next topic is terms of an expressions. So terms यहाँ पे आपको दिए हैं C. 2 terms है. अब इसके expressions कौन से हैं वो हमें first find करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 and x. So 4 is a constant term and x is a variable. So जब भी ऐसा form दिया होता है multiplication form में होते हैं. So इसका form क्या हो जाएगा, 4x का 4 into x and then जो constant term है वो हमें add करवाना है plus 5. So terms यहाँ पे है 2. 4x first is and second is 5 and 4x जो है इसका expression क्या है, 4 into x. से सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स है, 3x स्क्वायर एंड 7y. तो 3x स्क्वायर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, देन x का यहाँ पे है स्क्वायर. तो x को यहाँ पे हम कितनी टाइम्स रिपीट करेंगे, 2 टाइम्स. सो ये हो गया 3x स्क्वायर का इसका कॉम्बिनेशन जो हमने यहाँ पे किया था वेरिएबल के साथ, वो क्या होगा, इसका फॉर्म 3 into x एंड 7 into y को हम ऐसे लिखेंगे. सो दिस इज द इसका एक्सप्रेशन जो फॉर्म है वो कैसा होगा, 3x स्क्वायर का 3 into x एंड 7y का क्या होगा, 7 into y. सो दिस आर द टर्म्स
सपोज अगर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको ये टर्म्स आइडेंटिफाई करनी है, सो 4x + 5 में सो कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 2 टर्म्स. फर्स्ट वन इज अ 4x एंड सेकेंड वन इज अ 5. और यहाँ पे भी दिस वन इज अ फर्स्ट टर्म एंड दिस वन इज अ सेकेंड टर्म. नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट्स. We have learned how to write a term as a product of a factor. One of this factor may be numerical and the other algebraic. For example, they contain variables too. The numerical factors is said to be the numerical coefficient or simply the coefficient of the term. It is also said to be coefficient of rest of the term, which is obviously the product of algebraic factors of the term. Now coefficient किससे कहते हैं? कोफिशिएंट यानी कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होते हैं, जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं, दिस इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट. नाउ यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल्स लिए हैं. फर्स्ट इज 5xy. तो 5xy में हमारे पास कोफिशिएंट क्या होगा? 5. xy जो है वो वेरिएबल्स है. -7x² y² में क्या होगा? -7. अगर माइनस का साइन आता है तो वो हमें कैरी करना है. ना यहाँ पे आप देख सकते हो xy, आगे यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 1. जब भी ऐसा कोई नंबर ना हो तो हमें 1 पुट करना है, क्योंकि 1 हम शो करते हैं नहीं. तो ये 1xy होगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आएगा इसका? 1. एंड -xy है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, सो -1 हम लिख सकते हैं. ओके, सो दिस इज द कोफिशिएंट्स. नाउ like and unlike terms. So what is like and unlike? When terms have a same algebraic factors, they are like terms. When terms have different algebraic factors, they are unlike. For example, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास पूरा यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 2xy - 3x + 5xy - 4. तो इसमें से like कौन से हैं? सो इसमें जो 2 like टर्म्स है, फर्स्ट इज 2xy एंड सेकेंड इज अ 5xy. हाउ? बिकॉज इसके वेरिएबल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए. ओके, सो 2xy एंड 5xy आर लाइक टर्म्स. अगर यहाँ पे ऐसा होगा 2xy - 5xy, देन ऑल्सो दे बोथ आर अ लाइक टर्म्स. देन इफ 2xy एंड -5ix, अगर वेरिएबल्स इंटरचेंज हो रहे हैं तो भी ये दोनों ही लाइक फैक्टर्स कहे जाएंगे. ओके, सो अगर वेरिएबल इंटरचेंज हो रहा है या नेगेटिव पॉजिटिव है, देन ऑल्सो इट इज़ अ लाइक टर्म. नाउ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स. नाउ मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं? सो एन एक्सप्रेशन विथ ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल. जिसके पास सिर्फ 1 टर्म है, इसे कहते हैं मोनोमियल. बाइनोमियल यानी कि जिसके पास 2 टर्म्स हैं, x + y, m - 5, mn + 4m. ओके, जिसके पास 2 टर्म्स है, दिस इज द बाइनोमियल्स. ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसके पास 3 टर्म्स है, x + y + 7, ab + a + b. ओके, दिस इज द ट्राइनोमियल्स. इन जनरल an expression with 1 or more terms is called a polynomials. और ये सारी टर्म्स मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स तीनों को ही क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स. और ये सारे जो है वो पॉलिनोमियल्स होते हैं. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. मोनोमियल यानी कि 1 टर्म, बाइनोमियल्स यानी कि 2 टर्म्स एंड ट्राइनोमियल्स यानी कि 3 टर्म्स.